అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా జనసేన పార్టీ తరఫు నుంచి ఎంతో అభిమానంతో మా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని, మమ్మల్ని జనసేన పార్టీని ఆదరించి అభిమానించినందుకు మాయావతి గారిని ప్రత్యేకంగా విశాఖపట్నానికి మనందరి తరఫున హృదయపూర్వకంగా ఆమెని ఆహ్వానిస్తూ, జనసేన పార్టీ, బహుజన సమాజ్ పార్టీ, సిపిఐ, సిపిఎం ఈ కలయిక ఎన్నికలు కలిసి వెళ్ళడం అనేది ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయం. రాజకీయంగా, సామాజికంగా కూడా మన రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఎంతో అవసరమని భావించి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రత్యేకంగా ఈ అలయన్స్ని ఇంకా జాగ్రత్తగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అందులో భాగంగానే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి భావజాలం, కాంశీరామ్ గారి భావజాలం కేవలం ఉపన్యాసాలకే పరిమితం అవ్వకుండా వాస్తవంగా పార్టీలో మేము చేసే ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా ఆ భావజాలాన్ని గౌరవించి అన్ని సందర్భాల్లో కూడా ప్రజలకి మేలు చేసే విధంగా జనసేన పార్టీ ఎప్పుడు కూడా సమాజానికి నిలబడుతుంది. మాయావతి గారితో మేము కలిసినప్పుడు కూడా కులాలను, మతాలను కలిపే పార్టీ జనసేన పార్టీ. అందుకు ఈ కలయిక ఒక నిదర్శనం. దయచేసి మీరందరూ కూడా కొంచెం సహకరించాలి. ఈ మీట్ ద ప్రెస్ కార్యక్రమంలో కొన్ని ప్రశ్నలు సోదరుల దగ్గర తీసుకున్నాను. అవన్నీ కూడా నేను మాయావతి గారికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను. ఈరోజు రేపు మా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మాయావతి గారు విజయవాడ, తిరుపతి, హైదరాబాద్ ఈ 3 ప్రాంతాల్లో బహిరంగ సభల్లో పాల్గొనబోతున్నారు. ముందుగా విశాఖపట్నంలో మనకి ఈ అవకాశం దొరికింది. సో దయచేసి మీరందరూ కూడా గౌరవించి కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంటే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా ముందు తీసుకెళ్ళగలుగుతామని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు మా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మాట్లాడమని కోరుతున్నాను. बहन जी मायावती जी को मैं प्रणाम करता हूं. ఇక్కడ కూర్చున్న పాత్రికేయ సోదరులందరికీ, మీడియా మిత్రులందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి జనసేన పార్టీ తరపున మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అలాగే బీఎస్పీ నాయకులు మిశ్రా గారికి, ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. I wholeheartedly welcome Kumari Behan ji, Mayawati ji on behalf of people of Telangana and Andhra Pradesh. It's a good movement in AP and Telangana political landscape, aligning with getting the grace from Behan ji, Mayawati ji. This association actually started, it was initiated around a decade back, 10 years back. నాకు చాలా దళిత ఉద్యమాల్లో పనిచేసిన సన్నిహితులు, మేధావులు, గత దశాబ్దం నుంచి నాతో చాలా సాన్నిహిత్యం ఉన్నవాళ్ళు 2008 నుంచి నన్ను బహుజన్ సమాజ్ పార్టీకి మీరు కలిసి రావాలని చెప్పి చాలా రకాల ఆహ్వానాలు అందినాయి. అప్పుడు పరిస్థితులను బట్టి నేను ముందుకు తీసుకెళ్ళలేకపోయాం. కానీ ఆ సాన్నిహిత్యం రకరకాల మేధావులతోటి, బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ మేధావులతోటి, వీళ్ళందరితోటి కలవటం జరిగింది. అది ఈ రోజున 2019లో చాలామంది సన్నిహితులు, మేధావులు అందరూ కలిసి జనసేన బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ కలవాలి అనేది ప్రత్యేకంగా మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు 2014 టీడీపీ తోటి ముందుకెళ్ళడం జరిగింది. ఆ రోజు ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి భారతదేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ తర్వాత, కాంగ్రెస్ తర్వాత ద వన్ అండ్ ఓన్లీ నేషనల్ పార్టీ ఇస్ బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ. ఈ రెండు కూడా స్టీమ్ అయిపోయిన పార్టీస్. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ కానీ
స్థానిక రీజనల్ అండర్స్టాండింగ్ లేని పార్టీలుగా అయిపోయినాయి భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ. అలాంటి తరుణంలో మేమందరం ఆలోచిస్తుంది, మేమందరం కోరుకుంటుంది అసలు ముఖ్యంగా మనకి సంబంధించి రాష్ట్ర విభజన అని జరిగింది ఒకే ఒక్క స్లోగన్ మీద జరిగింది. కేసీఆర్ గారు చేసినా ఎవరు చేసినా దళితుల్ని ముఖ్యమంత్రి చేస్తాను అని చెప్పి తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రారంభమైంది. అది పరిస్థితుల్లో ఏ పరిస్థితులు నెరవేర్చలేకపోయారు, అది వారికి తెలియాలి. కానీ మేమందరం అనేక కోట్ల మందిలో లాగే నేను కోరుకుంటుంది ఆ రోజు అది చేయలేకపోయాం, కానీ అనుకుంది చేయలేకపోయారు. ఈ రోజు మేము కోరుకుంటుంది what we could not do at what they could not do at a Telangana state level. We wanted to see Behenji Mayawati ji as the Prime Minister of this great nation, and we want her guidance and her experience and her administrative caliber to guide this country, to progress this country with leaps and bounds. And this is our agenda, whatever best we could do from Andhra Pradesh, from Telangana, whatever best we could do to make sure that the support will be garnered from the states, from both the states, from both the Telugu speaking states, which would make sure that we endorse our support, we extend our support to fulfill a long standing dream where we have to see, we would like to see Behenji Mayawati ji as the Prime Minister of India. If a chai wala could become Prime Minister, if a chai wala from Chowkidar wanted to continue as Prime Minister, we wanted to see a lonely woman, a lonely fighter for a social purpose amidst all chaos, tough situations, how she had pulled herself amidst a lot of difficulties and quite for difficult challenges, and how she made a name for herself, how she inspired the current generation of political leaders, including Mr. Akhilesh Yadav and people like me. And we wanted her guidance and expertise and experience to take the nation forward. And what best we could do, we'd like to extend it to Behenji Mayawati ji. And it's an honor to sit beside her, it's an honor to stand by her. And I'm graciously, I'm conveying my wholehearted thanks to Behenji Mayawati ji. We are grateful to her, and on behalf of the Alliance, I want Behenji to speak a few words and address the media. Thank you. मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि यहाँ आंध्र प्रदेश स्टेट में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी आम चुनाव हो रहा है, और आंध्र से लगा हुआ तेलंगाना स्टेट है, वहाँ पर केवल पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहा है। आंध्र प्रदेश के बारे में आप लोगों को मैं कुछ कहना चाहूँ तो उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि तेलंगाना अलग से स्टेट बनने से पहले, जब ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, तो यहाँ पर आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक कांग्रेस पावर में रही, लेकिन कांग्रेस ने ये पूरे आंध्र प्रदेश का ठीक ढंग से इसका विकास नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं किया, और तेलंगाना जो क्षेत्र है उसकी उपेक्षा की, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की ये डिमांड रही कि उनका अलग से स्टेट बनना चाहिए।
हमारी पार्टी भी चाहती थी कि वो स्टेट बने। यदि उस क्षेत्र का विकास होता तो अलग से कोई स्टेट बनाने की जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, इसलिए वो अलग से वो स्टेट बना। तो लेकिन अभी जो आंध्रा में अब ये 2 अलग स्टेट बन गए, तो आंध्रा में जो पार्लियामेंट और असेंबली का चुनाव हो रहा है, तो यहाँ की जो जनता है, तो हालांकि जब तक स्टेट नहीं बना था तो कांग्रेस को उन्होंने आजमाया, रीजनल पार्टीज को आजमाया, लेकिन स्टेट तेलंगाना अलग बनने के बाद भी आंध्रा को यहाँ पर जो रीजनल पार्टीज हैं तो उनकी गवर्नमेंट को उन्होंने यहाँ के लोगों ने आजमाया है। लेकिन आंध्रा में यहाँ की जनता को ना तो अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मिला और ना यहाँ का डेवलपमेंट हुआ। और सेंटर में जो भी पार्टी पावर में रही तो वो आंध्रा के लोगों का वोट तो लेती रही, ये कह करके हम इसको स्पेशल स्टेट का दर्जा देंगे, लेकिन किसी ने भी नहीं दिया, ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने। तो आंध्रा के लोगों में बहुत गुस्सा है। तो यहाँ के लोग ये चाहते थे कि हमें अब ये जो रीजनल पार्टीज हैं इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, चाहे तो श्री जगन की पार्टी है या श्री नायडू की पार्टी है, हमें इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ के लोग ये चाहते थे कि कोई नई लीडरशिप सामने आए। यहाँ आंध्रा में लोग चाहते थे कि कोई नया लीडरशिप, नया नेतृत्व लोकल लेवल पे और यंग ब्लड सामने आए, तो जो इस स्टेट को सही नेतृत्व दे सकता है। तो आप लोगों के बीच में तो इधर हमारे भाई बैठे हैं, तो श्री पवन कल्याण, तो आप लोग अच्छी प्रकार से इनको जानते हैं। यहाँ के बहुत ही कर्मठ हैं, युवा हैं, हर मामले में काबिल हैं। तो यहाँ के लोगों की दिली चाहती है कि कोई यंग ब्लड सामने आए और उसको हम आगे बढ़ावा दें। चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहती थी, यहाँ की जो जनता है बदलाव चाहती है। तो यहाँ के लोगों ने श्री पवन कल्याण जी को आगे किया कि आप अपनी पार्टी बनाएं और यहाँ पर नई लीडरशिप दें। तो इन्होंने जन सेना पार्टी बनाई, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये सोचा कि अभी हमारी ये नई पार्टी है तो अकेले जाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हमें ऐसी पार्टी के साथ अलायंस करना चाहिए तो जो यहाँ के लोगों, जो जन सेना पार्टी के साथ मिलकर तो एक सही गवर्नमेंट दे सके। तो हमें भी यहाँ पर सही लीडरशिप की जरूरत थी। तो फिर बीएसपी, जनसेना पार्टी, सीपीएम, सीपीआई, इनका इस चुनाव में, पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव में ये अलायंस हुआ है। और अच्छी बात यह है कि इस अलायंस को तो इधर आपके आंध्र प्रदेश स्टेट में श्री पवन कल्याण जी तो पूरा रात दिन मेहनत के साथ इधर लगे हैं कि इस अलायंस को पार्लियामेंट और असेंबली में ये जो चुनाव हो रहा है यहाँ पर तो अच्छा रिस्पांस मिले, अच्छा रिजल्ट मिले। और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि हमारे अलायंस को यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है और यहाँ गवर्नमेंट हमारी बन जाती है, तो फिर हमारा जो अलायंस है, हमारी पार्टी, तो श्री पवन कल्याण जी को एज ए सीएम कैंडिडेट, एज ए मुख्यमंत्री कैंडिडेट हम तो पहले से इनको मान के चल रहे हैं कि ये जो गठबंधन है इनको आगे इनको प्रोजेक्ट किया एज ए सीएम कैंडिडेट। और अलायंस को यदि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है तो अलायंस की तरफ से ये यहाँ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के ये मुख्यमंत्री बनेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक है वो अभी थोड़ा साइलेंट है, वो सोच रही है कि क्या किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है
कि यहाँ के पब्लिक के थोड़े साइलेंट रहने की वजह से वो कुछ थोड़ा चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, और इसलिए वो लोग, यहाँ की जनता बड़ी गंभीर है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो बीएसपी, जनसेना पार्टी, सीपीएम, सीपीआई का जो अलायंस हुआ है ये सक्सेसफुल होगा, पार्लियामेंट के चुनाव में भी, असेंबली में, और सक्सेसफुल होगा। और ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी, और गवर्नमेंट बनने के बाद श्री पवन कल्याण जी को यहाँ का सीएम बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्री पवन कल्याण जी तो ये बहुत ही सोशल नेचर के है। ये चाहते हैं कि जनता को जो है आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसके लिए ये मुझे जब जानकारी मिली कि ये अपने इंडिया में कई स्टेट में गए, तो यूपी में भी गए, तो इनको ये लगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो वो देश का संविधान बनाया, और देश में जो खास तौर से जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया मतलब। और आपके तेलंगाना में भी और आंध्रा में भी इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो जब इनको मालूम पड़ा कि उत्तर प्रदेश जो इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा स्टेट है, कि एक दलित वर्ग की लड़की जो है तो वो उत्तर प्रदेश की सीएम बनी है। मैं 4 बार वहां की सीएम रही, चौथी बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमारी पार्टी को मिली। हमने कोई अकेले चुनाव लड़ा था, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली। और जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली तो हमारे ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो चाहते थे, मान्यवर श्री कांशीराम जी जिन्होंने इस पार्टी की नींव रखी, तो उनकी सोच के मुताबिक मैंने उधर अकेले वीकर सेक्शन का ही नहीं, बल्कि जो अपर कास्ट के में से जो गरीब लोग हैं उनका भी, जो किसान हैं, बेरोजगार हैं, सभी सेक्शन का, जो विभिन्न क्षेत्र में लोग जो लोग काम कर रहे हैं, उन सबके हितों का ध्यान रखा। और जिन्होंने अपने देश का आईन बनाया, संविधान बनाया, उनको पूरा आदर सम्मान दिया, जिनको पूर्व की सरकारों में जिनकी उपेक्षा की गई थी। तो इनको ये लगा कि भाई आंध्रा में भी कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। तो ये अपने कंट्री में कई स्टेट में गए, यूपी में भी गए। तो बाद में जब ये इनसे अलायंस को लेकर बातचीत हुई लखनऊ में, तो इन्होंने बताया कि मैं बहुत प्रभावित हुआ लखनऊ में आकर, जो लखनऊ यूपी का कैपिटल है, कि इधर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर जो स्मारक बने, और जो यहाँ का जो महानगर का जो इसको डेवलप किया जिस तरीके से, तो ये पहला लखनऊ है। ये लखनऊ बिल्कुल बदल गया बीएसपी की हुकूमत में। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, मीडिया बंधुओं को, और मीडिया के माध्यम से आंध्र प्रदेश के स्टेट को भी मैं अपना मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि आंध्र प्रदेश की जो स्टेट की जो जनता है, तो उनको अपना वोट डिवाइड नहीं करना चाहिए एक तरफा। क्योंकि आप लोग जिनको, जो यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं या नेशनल पार्टी जो चुनाव लड़ी, उनको आजमा चुके हैं, उनको मौका दिया आप लोगों ने। तो मेरा मीडिया के माध्यम से आंध्र प्रदेश स्टेट की जनता से ये अपील है कि वो एक मौका श्री पवन कल्याण जी को भी जरूर दें, हमारे अलायंस को जरूर यहाँ पे एक मौका दें, और हमारी गवर्नमेंट बनाए। और जब गवर्नमेंट बन जाती है तो मुझे पूरा भरोसा है ये यूपी के पैटर्न पर चलकर तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की ये गवर्नमेंट इधर जरूर यहाँ पर चलाएंगे। और इसके साथ ही मैं इनको ये भी, आंध्रा के लोगों को ये भी मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ, यहाँ के स्टेट के लोगों को, मीडिया के माध्यम से, कि अभी इस समय क्योंकि पार्लियामेंट का भी चुनाव हो रहा है, और पूरे देश में खास तौर से क्योंकि पूरे देश के अंदर तो जनता ने कांग्रेस के भी हुकूमत को आजमाया है,
आजादी के बाद लंबे अरसे तक सेंटर में कांग्रेस पावर में रही। कांग्रेस क्यों सत्ता से बाहर हो गई? क्योंकि उन्होंने जो चुनाव के दौरान जनता को वायदे किए थे उसको उन्होंने पूरा नहीं किया, वो सत्ता से बाहर हो गए और उसका फायदा फिर भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सन 2014 में जब लोकसभा का आम चुनाव हुआ तो बीजेपी ने बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन जब वो पावर में आ गए तो उन्होंने अपने लगभग पूरे 5 वर्षों के अंदर अपने वायदों को पूरा नहीं किया, अपने वायदों को पूरा नहीं किया और वायदों पर से जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तो वो दूसरे मुद्दों की तरफ जनता का ध्यान डाइवर्ट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि जनता जो है नेशनल लेवल पे सेंटर की गवर्नमेंट के मामले में तो कांग्रेस को भी आजमा चुकी है और बीजेपी को भी। जनता जो है सेंटर में भी तब्दीली चाहती है पूरे कंट्री में। तो पूरे कंट्री के लोग चाहते हैं कि सेंटर में ऐसी पार्टी पावर में आनी चाहिए तो जिससे लोगों का वेलफेयर हो, अपना कंट्री सेफ रहे, वेलफेयर हो, ऐसा जनता चाहती है। और तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि यदि सेंटर में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो हम लोग तो हमारा ये मानना रहा है कि हम लोग कहते बहुत कम है, करके दिखाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हमारी पार्टी कहने में नहीं करने में ज्यादा विश्वास रखती है। और यदि हमें सेंटर में मौका मिलता है तो उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर चलकर हम पूरे कंट्री को एक बेहतरीन गवर्नमेंट देंगे, हर मामले में, हर स्तर पर एक अच्छी हम सरकार देंगे। और इतना ही नहीं, खास तौर से जो गरीब लोग हैं सर्व समाज में से, मैं अकेले विकास सेक्शन की बात नहीं कर रही हूं, सब समाज में से जो गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर उनकी गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाएगा। और जो किसान लोग हैं उनकी विभिन्न समस्याएं उनको दूर किया जाएगा। और ये मेरे लिए कोई नया नहीं है, मैं 4 बार यूपी की सीएम रही हूं, मेरा बड़ा तजर्बा रहा है। उस तजर्बे का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा जनता के वेलफेयर में। तो मेरा यही कहना है कि अभी तो इलेक्शन चला है, जब रिजल्ट आएगा, जैसी स्थिति बनेगी आप लोगों के सामने है। तो यदि हमें सेंटर में गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता है तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि किसी भी स्टेट के साथ तो पक्षपात नहीं किया जाएगा। जैसे अभी कोई पार्टी यदि कांग्रेस पावर में आती है तो वो अपने हिसाब से स्टेट की मदद करती है, किसी की करती है, किसी की नहीं करती है। बीजेपी आती है वो अपने हिसाब से करती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो पूरे कंट्री में हर स्टेट में हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे, जो वहां की लोकल प्रॉब्लम्स हैं तो उनको समाधान किया जाएगा। आपके आंध्र प्रदेश है, यहाँ के लोग चाहते हैं कि इसको स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जब हमें यदि सेंटर में सरकार बनाने का मौका मिला तो हम इसको स्पेशल स्टेट का दर्जा हम जरूर देंगे। क्योंकि कांग्रेस तो केवल वायदा करती सुनती रही है, बीजेपी भी, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा किया नहीं है। और मैं तो मीडिया के माध्यम से आंध्र प्रदेश की स्टेट की जो जनता है उससे यही अपील करती हूँ कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर परिवर्तन आए, चेंज लाएं और यहाँ पर जो हमारा अलायंस है इसकी सरकार बनाए और श्री पवन कल्याण जी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाए। तो मैं ऐसी अपील मीडिया के माध्यम से जनता से करती हूँ। धन्यवाद। जी मायावती గారికి ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి కాంగ్రెస్ వచ్చిన గతంలో ఒక్కో రాష్ట్ర అన్ని రాష్ట్రాల చేత ఓట్లు వేయించుకొని ఒక్కో రాష్ట్రానికి వారు నచ్చిన విధంగా చేస్తారు. అలాగే వాళ్ళని కాదని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ వచ్చి వాళ్ళకి
కొన్ని వాళ్ళకి నచ్చిన వ్యక్తులకి నచ్చిన ప్రాంతాలకి చేసి పెట్టాం. అలాగే మనకి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఇప్పుడు ఇస్తామని చెప్పిన కాంగ్రెస్ దాన్ని పెట్టకపోవడం, వాళ్ళు చేయలేదు కాబట్టి మీకు 15 ఏళ్ళు 10 కాదు 10 ఏళ్ళు ఇస్తాం 15 ఏళ్ళు ఇస్తామని చెప్పిన ప్రధానమంత్రి గారు ఇక్కడ వైజాగ్లో నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పారు 2014 ఎలక్షన్ సమయంలో. ఈ రోజున మళ్ళీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ మీకు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఇస్తామని చెప్పారు. మేము మాయావతి గారు మేము ఎందుకు అంటే 45,000 కోట్ల బడ్జెట్ ఉన్న ఉత్తరప్రదేశ్ని 2007లో 3 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్కి దాన్ని తీసుకెళ్లారు. అలాగే భారతదేశం స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎంతసేపు మనం బ్రిటిష్ వాళ్ళ బిల్డింగ్లు చూపించుకొని అది మన చరిత్రను చెప్పుకుంటాం, కానీ ఒక కాంటెంపరీ చరిత్ర మనదైంది చూపించింది బహన్జీ మాయావతి గారు ఉత్తరప్రదేశ్లో. మాటలు చెప్పడం కంటే ఆవిడ చేతుల్లో చేసి చూపిస్తారు. ఆవిడ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అనుభవం కానీ, అలాగే నోయిడాని డెవలప్ చేయడం కానీ, అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసిన విధానం చాలా అమోఘమైంది. అన్నిటికి మించి ఆర్థిక భద్రత కావాలి అంటే లా అండ్ ఆర్డర్ ఎంత బలంగా ఉంటుంది ఆవిడ టైంలో అంటే తన సొంత ఎమ్మెల్యేలను కూడా ఆవిడ ఏమాత్రం క్షమించలేదు. తప్పులు చేస్తే వాళ్ళను కూడా చట్టాలకి ఎవరు అతీతులు కాదని చెప్పి వాళ్ళని నడి రోడ్లు కూడా నడిపించిన విధానాలు పరిస్థితులు కూడా జరిగాయి. కానీ మనకున్న ముఖ్యమంత్రులు కానీ వీళ్ళు కానీ వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు భయంకరమైన తప్పులు చేస్తున్నారు. ప్రతిపక్ష నాయకులకు సంబంధించిన నాయకులు భయంకరమైన తప్పులు చేసిన పట్టించుకునే ప్రశ్నలు. కానీ అత్యంత టఫ్ ప్లేస్ అది, పెద్ద రాష్ట్రం. అలాంటి చోట్ల ఉత్తరప్రదేశ్లో బహన్జీ మాయావతి గారు లా అండ్ ఆర్డర్ కానీ, ఎకనామిక్ ప్రాస్పెరిటీ కానీ, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కానీ, అలాగే సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కానీ చాలా అద్భుతంగా చేశారు. ఈరోజు మాయావతి గారికి మనస్ఫూర్తిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల తరపున ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నాం. స్పెషల్ కేటగిరీ ఆవిడ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు చేయలేకపోయారు, కాంగ్రెస్ నాయకులు చేయలేకపోయారు. కానీ ఆవిడ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ మాట ఇచ్చారంటే తప్పరు. ఆవిడ పెద్ద మనసుతోటి ఆంధ్రప్రదేశ్కి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ నేను ప్రధానమంత్రి గారిని ఇస్తానని చెప్పినందుకు మనస్ఫూర్తిగా బహన్జీ మాయావతి గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ wholeheartedly grateful for Bhenji Mayawati for extending her support to grant special status for the state of Andhra Pradesh, where BJP and Congress both collectively failed. And she's not a leader not of mere words, she's leader of action. She will do it. And I'm truly grateful to her for giving us that she's going to grant special category status as soon as she ascends the throne of Prime Minister. Thank you. मुस्लिम समाज के लोगों को इधर मैं बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब 4 बार मेरे नेतृत्व में वहाँ सरकार बनी तो मेरी गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज में खास तौर से मुस्लिम समाज का विशेष ध्यान रखा गया और मेरी गवर्नमेंट में कोई वहाँ पर दंगे नहीं हुए, कोई हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव पैदा नहीं हुआ। सब लोग मिलकर चले और उनके डेवलपमेंट का भी पूरा ध्यान रखा। ये भी और यहाँ पर जब हमारी गवर्नमेंट बनती है तो सर्व समाज में माइनॉरिटी भी आता है, मुस्लिम समाज भी, तो उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर यहाँ पर भी उनके हितों का हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो हाँ, और इसके अलावा मैंने ठीक है, हो गया तो अच्छा इन्होंने स्लिप दिया है। अच्छा इसके अलावा आप लोगों ने मैनिफेस्टो के बारे में पूछा है तो मैं इसके बारे में ये बताना चाहती हूँ। जहाँ तक बीएसपी का मामला है, मैनिफेस्टो जारी करने के मामले में बीएसपी ने जब से बीएसपी बनी है आज तक 4 बार गवर्नमेंट बनी है, कई चुनाव लड़े हैं पार्लियामेंट के भी और असेंबली के भी। हम किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं करते हैं इलेक्शन के दौरान।
क्योंकि हमारी पार्टी कहने में कम और करने में ज्यादा विश्वास रखती है। हाँ, इतना जरूर है कि जब हमें गवर्नमेंट बनाने का मौका मिल जाता है, जैसे यूपी में मिला, तो हमने वहां पर तो जो जनता की रिक्वायरमेंट्स होती है, वहां की जो उनकी नेसेसिटीज है, उसको ध्यान में रखकर हमने उधर काम किया। तो और जहां तक कांग्रेस पार्टी ने अभी कल अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, तो आप तो इनके आजादी के बाद से लेके बहुत चुनावी घोषणा पत्र देख चुके हैं। बीजेपी का भी आप लोगों ने देखा है, पिछली बार वो बोलते थे कि भाई जब बीजेपी पावर में आ जाएगी तो हर गरीब आदमी को 15 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब वो इसी पैटर्न पर कांग्रेस पार्टी भी बोल रही है कि यदि हम लोग पावर में आए तो गरीब को जो है हम 1 साल में 72,000 रुपए देंगे। लेकिन गरीबी, अब इनको कांग्रेस को ये मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस अभी बहुत पहले जब श्रीमती इंदिरा गांधी जिंदा थी तो उन्होंने भी गरीबी हटाओ के नाम पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। क्या गरीबी हटी? तो इसलिए हमारी पार्टी जो है कहने में कम और कार्य करने में ज्यादा विश्वास रखती है। इसलिए हम लोग अपना सही मायने में मैनिफेस्टो जारी कब करते हैं? जब हम लोग पावर में आ जाते हैं, तब हम बताते हैं हम लोग ये करेंगे। प्रेस की तरफ से कुछ क्वेश्चंस आपके पास आए, आप पूछ लीजिए ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेस। बहन जी, दिस इज फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। संतोष जी ये पूछना चाह रहे कि अपना जो गठबंधन है वो टीडीपी को हेल्प होगा या उनको नुकसान होगा? हमारा जो गठबंधन है तो यहाँ की जो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे जगन की पार्टी है, चाहे नायडू की है या तेलंगाना में, तो हमारे गठबंधन से उनको ये कहते हैं कि भाई वोट डिवाइड हो जाएगा, उनको फायदा होगा, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग लड़े हैं तो इनसे हमारे अलायंस को फायदा होगा। बिल्कुल। और ऋषिका CNN 18 से पूछना चाह रहे, यू वांट टू आस्क हर? गो अहेड। बस मेरा ये सवाल था, अगर आप ऋषिका सादम फ्रॉम CNN, सवाल ये था कि वेस्ट यूपी में देखा जाए तो फेज 1 कैंपेनिंग खत्म होने में 1 हफ्ता बाकी है। योगी जी और मोदी आदित्यनाथ जी ने तो योगी आदित्यनाथ और मोदी कैंपेन शुरू कर दिया है। अखिलेश जी और आपने अभी तक वहां पे कैंपेन नहीं किया है। वो एक सवाल था। कांग्रेस मैनिफेस्टो ने तो आपने आंसर कर दिया। पवन कल्याण जी ने तो ओपनली सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया कि आपको पीएम बनना चाहिए। आपकी राय क्या है? आप भी कंटेंडर्स बनेंगे 2019 के बाद उसमें? देखो, जहां तक मेरा पीएम बनने का सवाल है तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी इलेक्शन चल रहा है। जब रिजल्ट आ जाएगा स्थिति क्लियर हो जाएगी। और जहां तक उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी का आपने कहा कि वहां पर अभी आपने चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया है, तो मेरे ख्याल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको भी नहीं है और दूसरी पार्टी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरा 7 अप्रैल से तो वहां पर चुनाव अभियान जो है हमारा शुरू हो जाएगा। और पहली रैली जो है, बिग रैली 7 अप्रैल को, तो वहां पर 3-4 लोकसभा की जो सीटें जिसका सेंटर पॉइंट जो है देवन पड़ता है, वहां पर होगी। और वहां पर समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव भी होंगे और लोकदल के जो अध्यक्ष हैं श्री अजीत सिंह भी होंगे। तो हमारी जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वो 7 अप्रैल से कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर पहले चरण में तो ज्यादा सीटों पर वोटिंग नहीं हो रहा, ज्यादा लोकसभा की बहुत कम सीटों पर हो रहा है। तो उसके हिसाब से हमने प्रोग्राम अपना उधर का पश्चिमी यूपी का बनाया है। लेकिन इसके अलावा पहले चरण में कुछ जिन जिन राज्यों में पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं तो उसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए और बाकी हमारी पार्टी के लोग उधर काम में लगे ही हैं। और जहां तक मेरा सवाल है वो 7 अप्रैल से उधर शुरू हो जाएगा, आप आना जरूर। बहन जी, ऑल इंडिया रेडियो से महेश पूछना चाह रहे कि ये थर्ड फ्रंट का जरूरत अब है क्या इस पॉलिटिकल सिचुएशन में? पोस्ट पोल सिनेरियो पूछना चाह रहे। अब ये तो वक्त आने पर रिजल्ट आएगा, स्थिति क्लियर होगी तभी हम कुछ कह सकते हैं। और एक सवाल था कि जो डिवीजन ऑफ वोट्स
इस गठबंधन में आना चाहिए, अगर वो बीजेपी को हेल्प करेगा या नुकसान होगा? ये है इंडियन एक्सप्रेस से जनार्दन राउत। मुझे नहीं लगता है कि जो लोग ये केवल जो यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं, कांग्रेस और बीजेपी, जो नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टीज, ये इस किस्म का गलत प्रोपोगंडा कर रही हैं कि इससे इसको फायदा होगा हमारे अलायंस से। मैं समझती हूँ क्योंकि जो यहाँ की जो रीजनल पार्टीज हैं उनको जनता आजमा चुकी है, तो जितना ये लोग वोट काटेंगे हमारे अलायंस को फायदा होगा। और बीएसपी का मालूम है कि हमारा जो वीकर सेक्शन का वोट है वो अकेले आंध्रा के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर असेंबली सेगमेंट में, पार्लियामेंट सेगमेंट में आपको मिलेगा। तो और बीएसपी केवल इधर ही नहीं, नेशनल लेवल पे हमने सर्व समाज को हम बीएसपी में जोड़े हैं, और जो बीएसपी का जो बेस वोट है वो तो बड़े पैमाने पर जुड़ा है। तो ये केवल हमारे अलायंस को नुकसान पहुंचाने के लिए ये एंटी प्रोपोगंडा है। క్వశ్చన్స్ తెలుగు మీడియా నుంచి ఉన్న ఎస్ నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయగలుగుతాను, మీరు చెప్పండి. मैडम जी, आप पवन कल्याण पार्टी में, जनसेना में क्या देख के अलायंस के आए हैं? मैं ये देखकर आई हूं क्योंकि इनके अंदर से, श्री पवन कल्याण जी के अंदर से कुछ ऐसी चाहत है कि मुझे कुछ गरीब लोगों के लिए करना चाहिए, आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए कुछ करना चाहिए, ये कुछ जनता के वेलफेयर में करना चाहते हैं। और दूसरा क्या है कि इसीलिए ये लोग कई स्टेट में भी, ये कई स्टेट में भी गए, जाकर भी देखा, यूपी में भी गए। और दूसरा क्या है कि ये वेल क्वालिफाइड हैं, यंग हैं, और इनको काफी तजर्बा है, और आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी आप लोगों को अच्छी प्रकार से मालूम है। तो हर जगह ये कामयाब रहे हैं। तो जब उधर सक्सेसफुल हो गए हैं तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं सक्सेसफुल होंगे? तो मुझे पूरा भरोसा है जरूर सक्सेसफुल होंगे। Hello, sir. This is Kiran from Deccan Chronicle, sir, here. And my question is for Mr. Pawan Kalyan ji. Sir, see, BSP, Janasena and CPI, CPM are against wastage of public money. Say it again. All these parties are against wasting the public money. And you're contesting in two constituencies, one is in Gajuwaka and Bhimavaram. Yes. If you win both of them, you have to quit one constituency, Okay. and there will be a by-election again. Yeah. Is that not the wasting of public money, sir? When compared to what Mr. Chandrababu Naidu has wasted money on Pushkar and that kind of thing, and also Sri Jagan Mohan Reddy, the kind of scams he did, thousands of, almost close to 1 lakh crores, which they keep saying, and at least proven CBI cases, few thousands of crores. And compared to all that, we are here, a new party, we're doing it for a purpose, to make sure to empower, to strengthen the local cadre, and also to make sure we reach out to the maximum, to reach our best. But in future, we'll make sure, definitely I don't prefer to, but in circumstances, special circumstances like this, we are forced to do it, but definitely we'll consider what you said. Thank you. మేము ఆవిడ అంటే మేము అనుకుంటుంది ఫ్రమ్ సిపిఐ సిపిఎం వి వాంటెడ్ మనం చంద్రబాబు మన మోదీ గారిని చూసాం ప్రధానమంత్రిగా ఎక్కువ మాటలు చెప్పి గాల్లో మాటలు చెప్పారు, ఏం చేయలేదు, చేతికి ఏమో లేదు, ఇబ్బందులు క్రియేట్ చేశారు. మారుతి గారి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎబిలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే మాటలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి, చేసిన చాలా ఉంటుంది. కాకపోతే మన దురదృష్టం మోదీ గారు నడిస్తే కూడా మొత్తం అది అద్భుతం జరిగినట్టు చెప్తారు, కానీ ఆవిడ చేసిన నిజంగా యూపీలో చూస్తే దాని గురించి డంకా బాధ్యత చెప్పేవాళ్ళు. ఆ బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. ఈ జనరేషన్ ఆఫ్ పొలిటికల్ లీడర్స్ విల్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ హర్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్. థ్యాంక్ యూ.
Sir, my question to you, sir. Pawan Kalyan garu. Huh? 500 crores. అది నేను ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేదు, అంత చేస్తున్నారని చెప్తున్నాను. అది మన ఇద్దరు మాట్లాడుకుందండి ఇప్పట్లో. నేను ఫస్ట్ గారు వెళ్ళాక మాట్లాడు, బెంజీ గారు వెళ్ళాక మాట్లాడుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Chandrababu Naidu comment. Sir, one Sir, my question to you, sir, Pawan Kalyan garu. JSP alliance with BSP and CPI CPM parties. Chandrababu Naidu questioned why Pawan Kalyan can't speak against Modi ji. ఎవరు చెప్పారు మాట? Chandrababu Naidu asked. అంటే contemporary AP politics, or I don't know about rest of India, especially South politics, ముఖ్యంగా AP and Telangana politics, అన్పార్లమెంటరీ లాంగ్వేజ్, బూతులు తిట్టుకోవడం తప్ప కంటెంట్ బేస్డ్ మర్యాద ఇచ్చి సంస్కారంగా ఒక సమస్యని విపులీకరించి విమర్శ చేయడం అనేది తెలియట్లేదు. నేను అలా చేస్తుంటే వాళ్ళు మాట్లాడిన భాష నేను మాట్లాడలేదు కాబట్టి బూతులు తిడితే సమస్య లోపలికి వెళ్దు, సమస్యను విపులీకరించి కన్స్ట్రక్టివ్ విమర్శ ద్వారా వెళ్తాను. నేను అది నమ్ముతున్నాను, అంతేగాని అది డే 1 నుంచి చేస్తాను. అది జనాలకు అర్థమవుతుంది కానీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడం వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయట్లేదు. థ్యాంక్ యూ. అలాగే ఒక ఐ థింక్ మనం पूरे कंट्री में जो बीजेपी की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा खराब है, खास तौर से अलायंस को लेकर। तो अभी जैसे उत्तर प्रदेश है तो वहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें हैं। तो सबसे ज़्यादा तो जो हमारा उधर गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ और राष्ट्रीय लोकदल के साथ, तो उसको लेकर ये बहुत ज्यादा दुखी है। तो जब यूपी तो जो इतना बड़ा स्टेट है तो वहां से ये लोग दुखी है, और इनको ये भी मालूम है बीजेपी को कि जो बहुजन समाज पार्टी है बीएसपी है तो इसका वोट हर स्टेट में मिलेगा। जब पिछला सन 2014 में लोकसभा का आम चुनाव हुआ था तो बीएसपी वोट के हिसाब से तीसरे नंबर की पार्टी थी नेशनल लेवल पे वोट के हिसाब से। तो बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी वोट के हिसाब से। तो जहां जहां भी अलायंस है, तो अभी इधर भी है जैसे, तो हमारा जहां जहां भी अलायंस है या अन्य और भी जो दूसरे अलायंस है तो बीजेपी को जरूर उसका नुकसान होगा। जी, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మాయావతి గారితో బీఎస్పీ డెలిగేషన్ లో జనరల్ సెక్రటరీ మిశ్రా గారు, రాజ్యసభ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్.